میں نے جس وقت اپنے کمرے میں قدم رکھا گھڑی دن کے 11 بجا رہی تھی۔ اس روز مجھے ڈیوٹی سنبھالنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ مجھ سے پہلے تانے کا عملہ حاضر ہو چکا تھا۔ میں نے نیم دراز ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانس لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل میرے کمرے میں آیا اور سلوٹ کرنے کے بعد یہ اطلاع دی، ملک صاحب، ادھر 7 والے محلے میں ایک عورت کی موت واقع ہو گئی ہے۔ موت واقع ہو گئی ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ کس طرح؟ اور اس کی موت کا پولیس آنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ جل کر مری ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اوہ، یہ کب کی بات ہے؟ ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اطلاع دینے والا بندہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ ابھی تک کوئی کارروائی وغیرہ ہوئی بھی یا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ آپ کی آمد کا انتظار تھا جناب۔ ٹھیک ہے، اطلاع دینے والے کو اندر بھیجو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد متعلقہ شخص میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے اپنا نام فرید بتایا۔ فرید اس عورت کے پڑوس میں رہتا تھا جس کی موت جل جانے سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے فرید سے 2-4 ضروری سوالات کیے اور حوالدار کو اپنے ساتھ لے کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ آگ باورچی خانے میں لگی تھی۔ میری آمد سے قبل محلے والوں نے اس خوفناک آگ پر قابو پا لیا تھا اور مذکورہ بد نصیب عورت کی سوختہ لاش کو باورچی خانے سے نکال کر صحن میں پہنچا دیا گیا تھا۔ متفقہ نام فردوس بی بی معلوم ہوا۔ فردوس کی سوختہ لاش اس وقت گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر چادر سے ڈھکی ہوئی پڑی تھی۔ میں نے چادر کا کونا اٹھا کر لاش کا جائزہ لیا تو ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس کا ویسے تو پورا بدن ہی کباب کی طرح بھن چکا تھا، تاہم چہرے کی حالت بڑی ہیبت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اس کے قد و خال کو وحشی آگ نے مسخ کر کے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے نہایت مختصر معائنے کے بعد لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا اور گھوم کر جائے کو اور اس کے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آگ باورچی خانے کے اندر لگی اور یہ باورچی خانہ گھر کی شمالی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا اور باورچی خانے کے ساتھ ہی غسل خانہ واقع تھا۔ جنوبی دیوار کے ساتھ 2-3 پھلدار پیڑ تھے۔ آگ کو سب سے پہلے فردوس بی بی کے پڑوسی فرید نے دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ فرید چونکہ اس واقعے کا چشم دید گواہ تھا، لہٰذا میں نے سب سے پہلے اسی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے اس وقت کسی ضروری کام سے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے 7 والے گھر کے باورچی خانے سے دھواں سا اڑتا نظر آیا۔ میں نے اس دھوئیں پر پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب اس نے کالے بادلوں کی طرح خوفناک صورت اختیار کر لی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنی چھت کے آخری سرے پر جا کر دوسرے گھر کے صحن میں جھانکا تو یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ فردوس بی بی کے گھر کا باورچی خانہ خوفناک آگ کی لپیٹ میں تھا۔ فوری طور پر میں چھت سے نیچے اترا اور باہر گلی میں جا کر محلے والوں کو اس اندھوناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری پکار پر گلی میں درجن بھر افراد جمع ہو گئے۔ فردوس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم آنن فانن اندر پہنچے اور یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ بہرحال ہم نے کسی نہ کسی طرح اس خوفناک آگ پر قابو پایا اور باورچی خانے کا دروازہ کھول کر فردوس کی لاش کو باہر نکال لیا۔ پھر میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دینے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ فردوس کا بیان دیکھنے میں نہایت ہی سیدھا سادہ لگتا تھا، لیکن مجھے اس بیان کے اندر متعدد سنسنی خیز انکشافات نظر آ گئے تھے اور فرید کی بات سن کر میرا ذہن یکبک کئی زاویوں پر سوچنے لگا تھا۔ یہ نہ تو خودکشی کا کیس تھا اور نہ ہی اتفاقیہ آتش زنی کا واقعہ نظر آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر باورچی خانے میں اتفاق سے آگ بھڑکی ہوئی ہوتی تو ایسی صورت میں فردوس بی بی چپ چاپ اپنی جان نہ دے دیتی، وہ خود کو بچانے کے لیے چیخو پکار اور بھاگ دوڑ ضرور کرتی۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ اسے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، جس کا یہاں کوئی ثبوت نظر نہیں آتا تھا۔ دوسرا امکان خودکشی کا ہو سکتا تھا، یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ فردوس نے اپنی جان لینے کے لیے خود کو آگ لگا دی ہوگی۔ ایسی صورت میں باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ فرید کے بیان کے مطابق جب وہ لوگ گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اگر فردوس نے خودکشی کی نیت سے خود کو باورچی خانے میں بند کیا تھا تو باورچی خانے کا دروازہ باہر سے کیسے بند ہو گیا؟ فرید کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سیدھا سادہ قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد مشین نامہ تیار کیا اور موقع پر موجود گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ ان گواہوں میں میری سب سے زیادہ اہمیت متوقع پڑوسی فرید کی تھی، لہٰذا میں نے اسے سب سے آخر میں ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4-5 افراد کے بیان لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سے مجھے تفتیشی معاملات میں کوئی مدد ملنے والی نہیں تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں متوفہ فردوس بی بی اور اس کے گھر کے حوالے سے آپ کو مختصراً بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے۔ نمبر 1 فردوس بی بی، نمبر 2 فردوس کی بوڑھی ماں سعد سلطانہ اور ان کا کرایہ دار جمشید۔ وہ 5 مرلے
اراضی پر بنا ہوا ایک درمیانی سائز کا مکان تھا۔ کراچی کے رہائشی مکان کے رقبے کو تقریباً 120 گز کا تصور کر لیں۔ گھر کے عقبی حصے میں پہلو 2 بڑے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ اس کے بعد کچا صحن تھا جس کے شمالی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں باتھ روم اور کچن بنے ہوئے تھے، جبکہ جنوبی دیوار کے ساتھ چند پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن یاد پڑتا ہے کہ وہ امرود اور شہتوت کے پیڑ تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں بیٹھک نما اور ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو جمشید نامی ایک شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ جمشید کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور مقامی پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں ماسٹر جمشید کے نام سے مشہور تھا۔ وہ مہینے 2 مہینے بعد اپنے گھر کا ایک چکر لگا آتا تھا۔ فردوس بی بی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک مقیم تھا۔ یعقوب شادی کے فوراً بعد ہی عراق روانہ ہو گیا تھا اور ابھی چند روز پہلے ہی وہ گھر والوں سے ملنے چھٹی پر پاکستان آیا تھا۔ یعقوب عراق کے ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا جس کا ذکر کرنا غیر متعلق ہے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات مجھے یہ پتہ چلی کہ جب فردوس بی بی کو یہ خوفناک پیش آیا، وہ گھر میں اکیلی تھی۔ یعقوب اور اس کی بوڑھی ماں سلطانہ کے بارے میں کوئی حتمی بات تو معلوم نہیں ہوئی کہ وہ لوگ اس وقت کہاں تھے، تاہم بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ یعقوب اپنی ماں کو اسپتال لینے گیا ہوگا۔ سلطانہ جوڑوں کے دائمی درد کی مریضہ تھی۔ ایک تو گرمی جہنم کی تپش پر سب کر لے جانے میں مصروف تھی، دوسرے اس گھر کے دیوار پر خصوصاً صحن میں انسانی گوشت کی سڑان چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہو کر سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ لہٰذا میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مولا بخش، تم فردوس بی بی کی سوختہ لاش کو سرکاری اسپتال پہنچوانے کے انتظامات کرو، جب تک میں فرید کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ موسم کی شدت اور لاش کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جلد از جلد اسپتال پہنچانا ہی مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، حوالدار فرمانبرداری سے بولا۔ آپ اس طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ میں بے فکر ہو کر فرید کے ساتھ فردوس کے گھر سے نکل آیا۔ ہم چلتے چلتے گلی کے کونے پر پہنچے جس کے آگے تھوڑے سے فاصلے پر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور کھیتوں کے آغاز پر ہی ایک سایہ دار شمیم کا تناور درخت کھڑا تھا۔ ہم دونوں مسکرا درخت کے نیچے آ گئے۔ فرید کے چہرے پر الجھن کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے فرید؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم خاصے پریشان ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے۔ اس نے متوجہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس لیے کہ تم میری نظر میں بہت اہم ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی؟ اس کی الجھن مزید بڑھ گئی۔ کیا مطلب جناب؟ فرید، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم فردوس کے پڑوسی ہو، تم ہی وہ شخص ہو جس نے سب سے پہلے فردوس کے بورچی خانے کو آتش کی لپیٹ میں دیکھا۔ گویا تم ایک لحاظ سے واقعے کے عینی شاہد ہو۔ میں اس الگ تھلگ جگہ پر تمہارا بیان لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ فرید کچھ کہتا، ایک آدمی چارپائی سر پر اٹھائے ہمارے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے شمیم کی گھنی چھاؤں میں چارپائی بچھانے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، سرکار آپ ادھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں، میں کسی بچے کے ہاتھ لسی پانی بھی بھیجتا ہوں۔ اس شخص کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ میں نے اس کے عمل کے نتیجے میں تشکرانہ انداز میں پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میں اللہ رکھا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا، اسی محلے بلکہ اسی گلی میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے ثابت میں گردن ہلائی، تمہارا شکریہ۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں دوبارہ فرید کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فرید، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے جو بھی پوچھوں گا اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گے نا؟ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں بولا، میں نے پہلے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ بولا اور نہ ہی اب بولوں گا۔ آپ پوچھیں جو بھی آپ کو پوچھنا ہے۔ میں اس وقت اللہ رکھا کی لائی چارپائی پر بھرا جامان تھا جبکہ فرید میرے سامنے باادب باملاقاعدہ کھڑا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، فرید کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ فردوس بی بی گھر میں اکیلی تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا تم یہ بھی نہیں جانتے کہ فردوس بی بی کا کام روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا؟ میں نے اس حالت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور چند روز پہلے ہی اس کی واپسی ہوئی ہے۔ یہ بات مجھے پتا تھی۔ اس نے اصابت میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، یہ یعقوب کس مزاج کا بندہ ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ وہ متعدد انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یعقوب پچھلے 2 سال سے عراق میں نوکری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ تم بھی سال ہر سال سے ادھر رہ رہے ہو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے یعقوب کو کیسا پایا ہے؟ وہ تمہارا پڑوسی ہے، ظاہر ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ میل جول رہا ہوگا۔ بس جی، اس نے زمانہ انداز میں گردن ہلائی اور بولا، بندہ تو وہ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ فرید، میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا، کیا تمہیں واقعی اس بات کا علم نہیں کہ تمہاری پڑوس سلطانہ اور اس کا عراق پلٹ بیٹا یعقوب صبح ہی صبح کہاں غائب ہو گئے؟ ربدیسو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میری بھی وہی رائے ہے جو محلے والوں نے بیان دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یعقوب اپنی ماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہو۔ تمہارے ان لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے؟ کن لوگوں کے ساتھ؟ جی؟ گلشن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سلطانہ، اس کی جل کر ہلاک ہونے والی بہو فردوس بی بی کی بات کر رہا ہوں۔
میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ یعقوب کے ساتھ تمہارے مراسم کس نوعیت کے رہے؟ اسے پہلے کہ فرید میرے سوال کا جواب دیتا، اللہ رکھا کا بھیجا ہوا بندہ ہمارے لیے ٹھنڈی ٹھار لسی سے بھرا ہوا ایک جگ اور پیتل کے 2 گلاس لے کر وہاں پہنچ گیا۔ پھر اس بندے کو واپس بھیجنے کے بعد فرید نے ایک گلاس میں لسی بھر کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ لسی پئیں جناب، مجھ سے زیادہ اس وقت تمہیں لسی کی ضرورت ہے فرید بخش۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لسی کا گلاس لے کر ٹھہرتے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ تم میرے سوالات کے ٹھنڈے ٹھار جواب دے سکو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لیے بھی لسی کا گلاس تیار کر لیا، پھر میری سوالیہ نظر کے جواب میں بولا، تھانے دار صاحب یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، اچھے پڑوسی، ان کے ساتھ میرے تعلقات ہمیشہ اچھے ہی رہے، اور جہاں تک یعقوب کا تعلق ہے جناب، وہ سانس درست کرنے کے لیے موقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وہ جب تک یہاں تھا تو اس کا ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، پھر وہ عراق چلا گیا، اب 2 سال بعد واپس آیا ہے تو بھی بہت اچھی طرح ملا ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے تم نے یعقوب کے گھر پر تو گہری نظر رکھی ہوگی؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ یعقوب تو یہاں تھا نہیں، اور اس کی بیوی فردوس بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ جناب وہ الجھن نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں فردوس بیوی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں اس پر بری نظر ڈالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے بری نظر کے گھوڑے، میں نے اسے ڈانٹا، میں نے کب کہا ہے کہ تم یعقوب کی غیر موجودگی میں فردوس پر بری نظر ڈالتے ہوگے؟ پھر جناب، وہ بھونچا نظر سے مجھے تکنے لگا، میرا اشارہ ماسٹر جمشید کی طرف ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلطانہ نے ایک نامحرم کو بھی تو اپنے گھر میں کرایہ دار بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سنسنی خیز رنگ آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ذہن میں جو کچھ بھی تھا تہلکہ ڈال دینے والا تھا۔ اسے جو بیچ میں مطمئنہ دیکھ کر میں نے تنبیہ والے انداز میں کہا، فرید بخش اگر تم نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سچائی بھی مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی تمہیں ڈھیر ساری شرم آئے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے توبہ کرنے والے انداز میں بولا، سرکار میری توبہ، میں جو آپ سے کوئی غلط بیانی کروں تو پھر مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ جب میں نے ماسٹر جمشید کا ذکر کیا تو تمہارے چہرے کے تاثرات میں ہنگامی تبدیلی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں ماسٹر جمشید کی ذات کے حوالے سے تمہارے دل و دماغ میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، کیسے زبان کھولوں جناب، پڑوس کا معاملہ ہے، اور تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے چلتا ہوں۔ میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، وہاں پہنچ کر تمہاری زبان فر چلنے لگے گی۔ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ غضب نہ کریں سرکار، میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ یعقوب کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں نے اس کی بیوی کے حوالے سے آپ سے کوئی بات کی ہے، میں اس وقت تک ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا جب تک اصل معاملہ میرے علم میں نہ آ جائے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بتاؤ فردوس بیوی کے حوالے سے تم کون سا انکشاف کرنے والے ہو؟ چند لمحات تک تازو میں رہنے کے بعد اس نے کہا، ماسٹر جمشید کوئی پچھلے 1 سال سے سلطانہ کی بیٹھک میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ جب سلطانہ ماسٹر کو یہ بیٹھک کرایہ پر دے رہی تھی تو اس وقت میں نے سلطانہ کو سمجھایا تھا کہ وہ ماسٹر کو اپنے گھر میں نہ رکھے، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں، لیکن سلطانہ نے میری ایک نہ سنی اور وہی کیا جو اس کے ذہن میں سمایا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، تم نے ماسٹر جمشید کی کس بات سے اندازہ قائم کیا کہ وہ اچھا آدمی نہیں؟ جناب یہ بندہ مجھے شکل سے ہی ٹھیک نہیں لگا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اسی لیے میں نے سلطانہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا جوان بہو کا ساتھ ہے، کسی نامحرم کو یوں گھر میں رکھ لینا اچھی بات نہیں، لیکن جب اس نے کرائے کے لالچ میں میری بات پر توجہ نہیں دی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ آخری جملہ اس نے مجھ سے نگاہ چراتے ہوئے ادا کیا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، وہ کوئی اہم بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کڑکدار انداز میں کہا، لگتا ہے تمہیں حوالات کی ہوا کھلائے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تھانے دار صاحب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ گھگیانے لگا، آپ مجھے تھانے کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں، اگر تم واقعی ان چکروں سے بچنا چاہتے ہو تو الف کی طرح سیدھے ہو جاؤ۔ میں نے گھبراہٹ آمیز انداز میں کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ جانکاری مجھے تمہاری آنکھوں نے دی ہے کہ سلطانہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم نے صبر نہیں کیا تھا اور نہ ہی خاموش ہو کر بیٹھے تھے، بلکہ تم مسلسل اس ٹو میں لگے رہتے کہ ماسٹر اور فردوس بیوی کے درمیان کیا چکر چل رہا ہے، اور تم نے اس سلسلے میں بہت سی کارآمد باتیں بھی جان لی تھیں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ایک گہری سانس لی اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سرکار، میں چونکہ غلط نہیں کہہ رہا تھا اس لیے وہ انکار کی ہمت نہ کر سکا اور جلدی سے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے فردوس اور ماسٹر کے حوالے سے اچھی خاصی تحقیق کی ہے۔ کیسے تحقیق؟ میں نے استقامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، میں تمہاری کارکردگی کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اس نے گہری سانس خارج کی اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، میں سلطانہ کو تو سمجھانے سے باز آ گیا تھا، لیکن میں نے فردوس کے معاملات پر گہری نظر رکھی تھی۔ جلدی یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ یعقوب تو محنت مزدوری کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں فردوس ماسٹر جمشید کے ساتھ ایک خطرناک کھیل
खेल रही थी। फिरदौस पूरी तरह मास्टर की तरफ माइल हो चुकी थी। मैंने कई बार सोचा कि सुल्ताना से बात करूं, लेकिन इस ख्याल से खामोश रहा कि वो मेरी बात का यकीन ना करे। वो उल्टा मुझको लताड़ डालेगी। मैं खामखा इसकी बहू पर इल्जाम लगा रहा हूँ। ये तो मैं देख रहा था कि सुल्ताना मास्टर जमशेद पर अंधा भरोसा करने लगी थी, लिहाजा मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने सवाल किया। सुल्तान अपनी बहू मास्टर जमशेद के ताल्लुकात से बेखबर रही थी। मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो बेचारगी से बोला। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो दोनों बहुत हाथ पांव बचाकर ये खेल खेल रहे थे, वरना सुल्ताना इन्हें जानबूझकर ऐसा मौका नहीं दे सकती थी। सास बहू में चाहे कितनी भी ना इतफाकी क्यों ना हो, मगर सुल्ताना अपने बेटे को घर को आग तो नहीं लगा सकती थी। फरीद बच्ची एक बार ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, क्या सुल्ताना और फिरदौस के दरमियान इत्तेफाक नहीं था? बिल्कुल नहीं जनाब, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। अक्सर इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। याकूब को यहाँ आए चंद रोज हो गए। क्या तुमने फिरदौस और मास्टर वाले मामले में इसे कुछ बताया था? नहीं जी, मैं इसने नफी में करने लगी। मैंने इसे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। खामखा मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा कराने की मुझे क्या पड़ी थी? लेकिन याकूब तुम्हारा पड़ोसी और पुराना जानने वाला है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और तुम्हारे और इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे। तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता था कि पहली फुर्सत में याकूब को सूरत हाल से आगाह करो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने सोचा था याकूब वापस आ ही गया है तो सारा मामला खुद अपनी आंखों से देख लेगा। इसने लाताल्लुकी के अंदाज में जवाब दिया। फिरदौस बीबी भी यहाँ है और मास्टर जमशेद भी। मैं खामखा क्यों बुरा बनूं? लेकिन क्या फरीद भाई? वो बोलते बोलते रुका तो मैंने पूछा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि याकूब को अपनी बीवी की प्रेम कहानी की खबर हो गई थी। फरीद ने जवाब दिया तो मैं चौंक उठा। तुम्हें किस बात से ऐसा लगा? मैंने पूछा। पिछली रात दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बड़ा शदीद झगड़ा हुआ था। तुम्हें इस झगड़े के बारे में कैसे पता चला? मेरे और याकूब के घर की दीवार खासी नीची है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। इतनी नीची कि इधर से उधर बड़ी आसानी के साथ बात सुनी जा सकती है। रात को मैं पेशाब के लिए उठा था तो दीवार की दूसरी जानिब मुझे याकूब और फिरदौस के तेज बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे यही महसूस हुआ कि वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम हुआ होगा कि वो लोग किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। ये तो नहीं हो सकता था कि तुमने इनके झगड़े की आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और इत्मीनान से जाकर सो गए हो। आप ठीक कहते हैं जनाब, वो शर्मिंदा सी सूरत बनाकर बोला। मैं कान लगाकर बड़े ध्यान से इनकी बातें सुनी थी और इनके झगड़ने का सबब मेरी समझ में आ गया था। फरीद बख्श, पहेलियां नहीं डालो। वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और कि मुझे साफ और हकीकत बात बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी किस बात पर झगड़ा कर रहे थे। आने वाली 10 मिनट में मैं फरीद बख्श ने मुझे जो तफसील सुनाई, इसका खुलासा इतना था है कि याकूब को मास्टर जमशेद के हवाले से अपनी बीवी फिरदौस बीवी के किरदार पर शक हो गया था। मैंने पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनी और इसके खामोश होने पर कहा, यह मास्टर जमशेद भी कहीं नजर नहीं आ रहा। पता नहीं इसे फिरदौस बीबी की अलमनाक मौत की खबर हुई है या नहीं। खबर कैसे नहीं होगी जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। वो इस वक्त पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है कि फिरदौस बीबी बावर्ची खाने के अंदर जलकर मर गई है और इसका स्कूल भी इसी मोहल्ले में। फिर जब किसी इलाके में पुलिस आती है तो फिर कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। इसके बाद में वजन था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा, लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनकर मास्टर जमशेद क्यों नहीं पहुंचा? हो सकता है फिरोज की मौत का इल्म हो गया और वो जानबूझकर इधर उधर कहीं खिसक गया हो। फरीद ने ख्याल जाहिर किया, कल तक वो इधर ही था। मैंने जुम्मे की नमाज के बाद इसे मोहल्ले में देखा था। आज यानी जिस रोज़ फिरदौस बीबी का वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हफ्ते का दिन था। इस हिसाब से फरीद का बयान दुरुस्त था। इसने गुज़िश्ता जुम्मे के दिन मास्टर जमशेद को मोहल्ले में देखा था। मैंने इसकी आंखों में आंखों डालते हुए सवाल किया, फरीद भाई, तुम्हारे ख्याल में फिरदौस बीबी को किसने कत्ल किया होगा? कत्ल? वो वहशतज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। लेकिन जनाब, वो तो जलकर मर गई। ये एक इत्तेफाक़ी हादसा था। हरगिज़ नहीं फरीद बख्श, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए वजाहत की। तुमने मुझे बताया है कि जब तुम लोग आग का धुआं देखकर सुल्ताना के घर पहुंचे तो बावर्ची खाना आग के लपेट में था और जब तुम लोगों ने बावर्ची खाने के अंदर दाखिल होना चाहा तो इसके दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। फिरदौस घर में अकेली थी, लिहाजा वो बावर्ची खाने को बाहर से बंद नहीं कर सकती थी। चुनाचा इसकी खुदकुशी के इम्कान को 100% खारिज कर दिया जाए। मैंने लम्हाती तौफ़ुफ़ करने के बाद एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस हवाले से भी नहीं सोच सकता कि फिरदौस बीबी बावर्ची खाने में कामकाज में मसरूफ थी और किसी ने शरारत से दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी, या फिर इत्तेफाक से इसके कपड़ों में आग भड़क उठी, क्योंकि इस थ्योरी में बहुत से नकाइस हैं। नंबर 1, आजकल जिस शिद्दत की गर्मी पड़ी है, इसमें बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद करके काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, अगर फिरदौस कपड़ों में आग भड़कने से जलकर मरी होती तो मौत के मुंह में जाने से पहले वो चीख चिल्लाकर खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती। क्या तुम लोगों ने फिरदौस की ऐसी कोई पुकार या फरियाद सुनी?
तो फिर एक ही इम्कान बाकी रह जाता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। वो क्या? वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। फिरदौस को पहले कत्ल किया गया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर बोर्ची खाने में फेंक कर इसे सुप्ते आग किया गया, और जब आग ने पूरी तरह इसे लपेट में ले लिया तो बोर्ची खाने को बाहर से बंद कर दिया गया। लेकिन वो बेहद हैरत जुदा से बोला, ऐसा किसने किया होगा? फिरदौस के कातिल ने, मैंने सनसनीखेज अंदाज में कहा। कातिल कौन? ये तो मैं नहीं जानता, मगर मुझे इसी की तलाश है, मैंने ठेठ लहजे में कहा। फिर पूछा, फरीद बख्श, क्या तुम कातिल के बारे में जानते हो? नहीं नहीं जनाब, वो शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। बिल्कुल नहीं सरकार। बात खत्म करते ही वो इस रास्ते की जानिब देखने लगा जो इस मोहल्ले की तरफ आता था। मैंने फरीद बख्श की निगाह की ताकुब में देखा और मुसकरा कच्चे रास्ते पर मुझे एक तांगा अपनी तरफ आता नजर आया। मैंने फरीद बख्श से इत्तफार किया, क्या कोई खास बात है? मुझे लगता है याकूब और सुल्ताना वापिस आ गए। उसने बताया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने गहरी सांस खारिज की, मुझे भी इन्हीं का इंतजार था। तो फिर मैं जाऊं सरकार? मैं काफी देर से घर से निकला हुआ हूँ। जाओ, मैंने चारपाई से उठते हुए कहा, लेकिन कहीं इधर उधर नहीं हो जाना। आज का दिन तुम मोहल्ले से बाहर भी कदम नहीं निकालोगे, मुझे किसी वक्त भी तुम्हारी जरूरत पेश आ सकती है। जो आपका हुक्म सरकार। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मोहल्ले वालों का अंदाजा दुरुस्त था कि याकूब अपनी वालदा सुल्ताना को जोड़ों के एक डॉक्टर को दिखाने शहर ले गया था। सुल्ताना की उम्र 50 से मुताजाविज थी और वो जोड़ों के दायमी मर्ज में मुतबला थी। वो शक्ल से एक तेज तरार और चलता पुरजा किस्म की औरत नजर आती थी। याकूब की उम्र का अंदाजा मैंने 50 के करीब कायम किया। वो एक दुबला पतला और पुस्ता का मशक था। उसके सर के बाल उड़ना शुरू हो चुके थे। मैंने दोबारा जाए वकूफ पर आ गया था और फिरदौस बीबी के सोख्ता बदन से तड़ान के भपके नहीं उठ रहे थे, लिहाजा मैंने शतूत के पेड़ के नीचे खड़े होकर मौके की कार्रवाई को आगे बढ़ाने लगा। सुल्ताना और याकूब को इस सानी की खबर हुई तो गोया इन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। सुल्ताना ने इस वाक़े के बारे में उनसे ही बावेला शुरू कर दिया था। याकूब की हालत भी ख़राब हो रही थी, ताहम इसने खुद को बड़ी मजबूती से संभाल रखा था। सुल्ताना ने तो बाकायदा रोना भी शुरू कर दिया था। इसी वक्त हवालदार मौला बख्श मेरे पास आया और कहा, मलिक साहब, मैंने इस तांगे वाले को रोक रखा है जो इन माँ बेटे को लेकर शहर से यहाँ पहुँचा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसी तांगे में फिरदौस बीबी की लाश को सरकारी अस्पताल ले जाता हूँ। नेकी और पूछ मैंने इजाज़त देने वाले अंदाज में कहा। तुम लाश को लेकर फौरन अस्पताल की जानिब रवाना हो जाओ। याकूब भी मेरे नज़दीक ही खड़ा था। जब इसे पता चला कि मैं फिरदौस बीबी की सोख्ता लाश को सरकारी अस्पताल भिजवा रहा हूँ तो वो जल्दी से बोला, जनाब, आप मेरी बीवी की लाश को अस्पताल क्यों भेज रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए। खुदा का खौफ करें सरकार। वो खफगी भरे अंदाज में बोला, अब इस बेचारे के बदन में बचा ही क्या है जिसकी चीरफाड़ करेंगे? पोस्टमार्टम का मामला मुर्दे की चीरफाड़ तक महदूद नहीं होता याकूब, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। बदन की हड्डियाँ भी बेजुबान मेडिकल में बहुत सी अनकही कहानियाँ बयान कर जाती हैं। शायद वो मेरी बात की तार तक नहीं पहुंच सका। जल्दी से बोला, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी बीवी को कोई इत्तेफाकी हादसा पेश नहीं आया। मेरी इब्तदाई तहकीक के मुताबिक फिरदौस बीबी को बाकायदा कत्ल किया गया। इसकी हड्डियों का तजिया इस राज को खोल देगा कि फिरदौस की मौत किस नौयत की सूरत में वाक़ हुई है। इसकी हैरत दो चंद हो गई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ याकूब, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हारी बीवी को बाकायदा कत्ल किया गया है। इसे कौन कत्ल करेगा? कोई भी, और कोई भी तुम भी हो सकते हो याकूब। का क्या? वो एकदम उछल पड़ा। मैंने इसकी हैरतों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और फिरदौस बीबी की सोख्ता लाश को हवालदार मौला बख्श की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। उन्होंने मेरी इस कार्रवाई पर बहुत बावेला मचाया, लेकिन सरकार और सरकारी कामों में मैंने इनकी बात को कोई अहमियत नहीं दी। फिर लाश को वहाँ से रवाना करने के बाद माँ बेटी की जानिब मुतवज्जा हो गया। इनके इब्तदाई बयान से मुझे पता चला कि वो दोनों आज सुबह लगभग 7 बजे घर से निकले थे और फिरदौस बीबी को बिल्कुल ठीक ठाक घर में छोड़कर वो शहर की तरफ गए थे, और ये कि इन्हें फिरदौस को पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। ये बयान चूँकि मेरे लिए तसल्ली बख्श नहीं था, लिहाजा मैंने इन्हें अलग तलग तनाई में घुसने का फैसला कर लिया और याकूब को वहाँ से जाने का कहकर खुद सुल्ताना को लेकर बैठ गया। शहतूत के पेड़ के नीचे इतनी छाँव थी कि हम बासहूलत वहाँ बैठकर बातचीत कर सकते थे। मैंने इखलाकी तौर पर पहले तो सुल्ताना से दौनाक वाक़ये के हवाले से दिली हमदर्दी और गहरे रंजोगम का इजहार किया। फिर सवालात का सिलसिला शुरू किया। सुल्ताना, मुझे पता चला है कि तुमने अपने घर की बैठक किसी को किराए पर दे रखी है। जी थानेदार साहब, उसने हसाबत में गर्दन हिलाई। इस बंदे का नाम मास्टर जमशेद है जी। वो हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है जनाब। पिछले 2 साल से तुम्हारा बेटा याकूब मुल्क से बाहर रोजी कमाने गया हुआ था। मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया।
नौजवान बहू का साथ था। तुम्हें याकूब की अदम मौजूदगी में किसी नामहरूम को अपने घर के अंदर जगह नहीं देनी चाहिए थी। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इसके चेहरे पर निगाह जमाकर मायना खैस लहजे में इस्तफ़ार किया। सुल्ताना, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? जी, मैं आपकी बात का मतलब समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो साबत में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन मात्रा जमशेद बहुत ही शरीफ और बाक़िरदार बंदा है जनाब। मैंने ऐसे ही इस पर भरोसा नहीं कर लिया था जनाब। वो पिछले 1 साल से हमारे घर की बैठक में रह रहा है, लेकिन मजाल है जो मुझे इससे ज़रा भी शिकायत पैदा हुई हो। सुल्ताना बड़े एतमाद के साथ जो कुछ बयान कर रही थी वो इसके बरकस था जो फरीद बख्श की ज़ुबानी मुझे पता चल चुका था। या तो सुल्ताना इंतहाई बेवकूफ़ और अहमक किस्म की औरत थी, या फिर वो जानबूझकर किसी खास मकसद के तहत फिरदौस और मात्रा जमशेद वाले मामले पर पर्दा डाल रही थी। तीसरी सूरत यह भी हो सकती थी कि फरीद बख्श ने ही मुझसे गलत बयानी की हो। मैं पिछले 2 ढाई घंटे से तुम्हारे यहाँ मौजूद हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। पूरा मोहल्ला यहाँ आकर सूरत हाल का जायजा ले चुका है, लेकिन मास्टर अभी तक गायब है। क्या तुम बता सकती हो कि इतने बड़े वाक़ये के बाद वो स्कूल में खामोश क्यों बैठा हुआ है? जी ज़रूर बता सकती हूँ, वो बड़े एतमाद के साथ बोली। फिरदौस वाले वाक़ये ने अगरचे इसे रंजीदा और मलूल कर रखा था, मगर इसकी फितरी तेज़ी और तरारी अपनी जगह बरकरार थी। वो बेचारा इस वक्त स्कूल में होगा तो यहाँ आएगा ना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो पिछली रात को ही अपने पिंड रवाना हो गया था, वो वजाहत करते हुए बोला। मास्टर जमशेद मौजे रसूलपुर का रहने वाला है जनाब, जो यहाँ से 14-15 मील शुमार में वाक़ है। मैंने मौजे रसूलपुर को तो देख रखा था। सुल्ताना ने फासले के हवाले से जो बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, सुल्ताना आज हफ्ता है, स्कूल की छुट्टी तो सिर्फ इतवार को होती है, फिर वो जुम्मे को कैसे अपने गाँव चला गया? क्या कोई एमरजेंसी हो गई थी? वो अपने हाथों को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए बोली। कोई इमरजेंसी नहीं थानेदार साहब, वो तो हर महीने 2-3 दिन के लिए अपने घर वालों से मिलने जाता है, कभी जुम्मे की रात को, कभी हफ्ते की रात को। जब इसे हफ्ते की छुट्टी करना होती है तो जुम्मे की रात को निकल जाता है, और जब हफ्ते की रात को जाता है तो फिर वो सोमवार की छुट्टी ज़रूर करता है। वो लम्हे भर के लिए रुकी और एक बोझल सांस खारिज करने के बाद बताया, अब वो सोमवार की सुबह सीधा स्कूल पहुंचेगा और स्कूल की छुट्टी के बाद वो यहाँ आएगा। मैं मास्टर जमशेद का कमरा यानी तुम्हारे घर की बैठक देखना चाहता हूँ, मैंने सपाट अंदाज में कहा। आए मेरे साथ, वो बेसाख्ता बोली। मास्टर साहब अपने गांव जाने से पहले बैठक को ताला लगाकर मुझे चाबी दे जाता है। चंद नमाज के बाद मैंने सुल्ताना की मौत में इस घर की बैठक के दरमियान खड़ा था। वो बैठक अपनी सेटिंग के एतबार से किसी छड़े चार शख्स के कमरे का नमूना पेश नहीं करती थी, बल्कि वहाँ के सामान का हर छोटी बड़ी चीज़ से सलीका झलकता था। यूँ महसूस होता था कि किसी औरत के हाथों ने इस बैठक का खास तौर पर ख्याल रखा हो। और इस घर में सिर्फ 2 ही औरतें थीं, एक सुल्ताना और दूसरी फिरदौस बीवी। मजीद पूछताछ के लिए मैं इसी बैठक में बैठ गया और सुल्ताना की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, सुल्ताना अब मैं तुमसे इंतहाई नाजुक सवाल करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब दोगी। वो जुबान से कुछ नहीं बोली, ताहम मुंतज़िर नज़रों से मुझे देखती ही चली गई। मैंने गगार कर गला साफ किया और बोला, सुल्ताना, क्या मास्टर जमशेद रातों को छुप छुप कर तुम्हारी बहू फिरदौस से मुलाकातें किया करता था? इसने कुछ ऐसे अंदाज से चौंकर मुझे देखा जैसे इस सवाल पर इसके ज़हन में कोई खास ख्याल पैदा हुआ हो। एक लम्हे के तौसुफ के बाद ने पूछा, आपको ये बात किसने बताई है? इस मामले पर मैं बाद में भी बहस की जा सकती है। मेरी मालूमात का जरिया क्या है? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे चौंकने का अंदाज मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि दाल में कुछ काला है ना? वो बड़ी तेजी से संभलते हुए बोली। नहीं नहीं, ये ऐसी तो कोई बात नहीं, आपने जो भी सुना है बिल्कुल झूठ सुना है। वो झूठ नहीं हो सकता सुल्ताना, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मेरी इतलात बिल्कुल पक्की और लोहे तोड़ हैं। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और ज़रारी लहजे में बोली, आपको यकीनन फरीद ने कुछ उल्टा सीधा बताया होगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कदरे तेज़ लहजे में कहा। फिर तुम्हारा ध्यान अपने पड़ोसी फरीद बख्श की तरफ क्यों गया? वो इसलिए कि इस किस्म की बकवास फरीद के सिवा और कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही बज़ात और कमीना आदमी है जी। फरीद बख्श की तुमसे या तुम्हारी बहू से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। वो तो तुम्हारा पड़ोसी है और तुम्हारे बेटे याकूब से भी इसके अच्छे ताल्लुकात हैं। वो नामुराद अच्छे ताल्लुकात का डंडवारा पीटता है और पीठ पीछे छुरा भी घूमता है। वो झुंझलाहट आमेज अंदाज में बोली, अभी चंद दिन पहले पता है इस इतना बड़ा आदमी ने क्या किया है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। वो बताने लगी, इसने याकूब के आते ही सबसे पहले तो इसके कान भरे, फिरदौस और मास्टर के ताल्लुकात के हवाले से ऐसी शर्मनाक बातें कही कि हमारे घर में फसाद खड़ा हो गया। कैसा फसाद सुल्ताना? इस शैतान फिरदौस के किरदार के हवाले से याकूब के दिमाग में बहुत सारा जहर भर दिया है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, रोज़ रात को दोनों मियाँ बीवी के दरमियान खूब लड़ाई हुआ करती थी। मैं पिछले 3 रोज़ से यही तमाशा देख रही थी। गोया
फिरदौस और उसके शौहर याकूब के लड़ाई झगड़े के बारे में जो कुछ बताया था वो एक ठोस हकीकत थी। इसलिए मेरा ये जानना इंतहाई ज़रूरी हो गया था कि आया फरीद बख्श ने सुल्ताना के बयान के मुताबिक फिरदौस और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के हवाले से महज याकूब के कान भरे थे या इस वाक़ये में कोई हकीकत भी थी और इस सिलसिले में सुल्ताना मेरी मदद कर सकती थी। तुम जो कुछ बता रही हो और मैं इसको सच मान लूँ तो फिर मेरे लिए ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि फरीद तुम्हारी बहू से ऐसी दुश्मनी क्यों कर रहा था। अगर सुल्ताना इस सवाल का ठीक तरह से जवाब देती तो सारा मसला ही हल हो जाता। एक तरफ मुझे मास्टर और फिरदौस के ताल्लुकात का इल्म हकीकत का इल्म हो जाता और दूसरी जानिब फरीद बख्श का झूठ भी खुल जाता कि इसने याकूब को कुछ नहीं बताया था। मैंने मुंतज़िर निगाहों से सुल्ताना की तरफ देख रहा था। इसने थूक निकलकर अपने हलक को तर्क किया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फरीद बहुत ही कमीना और बज़ात है। जब फिरदौस मौत के मुंह में जा चुकी है और आप इसकी मौत के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं तो मैं आपको सच और झूठ की पहचान करने का मौका ज़रूर दूंगी। वही तो मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। वो लम्हे भर के लिए थमी तो मैंने कहा, मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि जब फिरदौस मास्टर जमशेद के दरमियान कोई काबिल एतराज़ ताल्लुक नहीं था तो फिर फरीद बख्श के पेट में मरोड़ उठने का सबब क्या हो सकता है। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा थानेदार जी, वो ताजी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। जब से फिरदौस ने इसकी बेइज्जती की थी वो बड़ी तकलीफ में मुतमिला था और डसने का मौका तलाश कर रहा था। फिर जैसे ही याकूब इराक से वापस आया इसे वार करने का मौका मिल गया। सुल्ताना की बातें सनसनीखेज होने के साथ साथ इंसाफ अंगेज भी थी। मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा, फिरदौस ने फरीद बख्श की बेइज्जती क्यों की थी? वो तो फिरदौस को अपनी बहन समझता था। यही तो इसकी मुनाफिकत है जी, वो नफरत आमेज अंदाज में बोली। वो फिरदौस को बहन और याकूब को भाई कहता है। इसके साथ ही वो याकूब की गैर मौजूदगी में फिरदौस पर बुरी निगाह भी डालता था। क्या मतलब सुल्ताना? मैंने चौंकने हुए लहजे में इस्तेफार किया। जनाब, सच्ची बात तो यह है कि फरीद बख्श मेरी बहू फिरदौस को मेरी नज़र से देखता था। वो एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वजाहत करते हुए बोली, पहले तो वो आते जाते फिरदौस पर छिछोरे जुमले कसता रहता था। फिरदौस ने मुझे इस की हरकतों के बारे में बताया तो मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने फरीद से पूछा तो वो साफ मुकर गया। इसके जवाब ने मुझे और गुस्सा दिलाया। मैंने फिरदौस को इजाज़त दे दी कि अब अगर कोई गिरी हुई हरकत करे तो फिरदौस इसे खरी खरी सुना डाले। चंद रोज बाद ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। यहाँ तक बताने के बाद वो मौकूफ हुई तो मैं पूछे बिना ना रह सका, ऐसा क्या हो गया था सुल्ताना? फिरदौस मोहल्ले के मेन बाजार से गुजर रही थी कि फरीद बख्श ने उसे एक जगह रोक लिया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। सुल्ताना ने बुरा मुंह बनाते हुए बताया तो बाजार में और भी लोग मौजूद थे। फरीद ने जैसी बकवास शुरू की, फिरदौस ने आओ देखा ना था घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया और इसके साथ ही फरीद के मुंह पर थूक भी दिया। कुछ कभी सोच भी नहीं सकता था फरीद के फिरदौस की तरफ से इस नौयत के रद्द अमल का मुजाहरा देखने को मिलेगा। वो अपने मुंह पर से फिरदौस के थूक को साफ करते हुए जहरीले लहजे में बोला, तुमने अच्छा नहीं किया फिरदौस, तुम तो इससे भी ज्यादा बुरे सलूक के काबिल हो। फिरदौस ने बिपरे हुए अंदाज में कहा। फरीद ने धमकी आमेज लहजे में कहा, तुमने जो भी किया है मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तुम्हें भी मजा ना चखाया तो मेरा नाम फरीद नहीं। क्या कर लोगे तुम? फिरदौस ने गजीले लहजे में पूछा। बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये कहकर वो एक तरफ चला गया। ये कितना अरसा पहले का वाक़या है? सुल्तान ने खामोश होते ही मैंने पूछा। कोई 2 महीने हुए हैं इस बात को। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। तो इसका मतलब ये है कि फरीद की लगाई हुई आग की वजह से ही दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा रहने लगा था। फरीद के मुताबिक इसने याकूब को फिरदौस और मास्टर जमशेद के ताल्लुकात के हवाले से कुछ नहीं बताया था, जबकि सुल्ताना का बयान इसके बरकस था और ये भी तय था कि दोनों में कोई एक ही सच्चा हो सकता था। थानेदार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मेरे सवाल के जवाब में सर को ताज़ी अंदाज में जश्न देते हुए बोली। याकूब तो ये सुनते ही गुस्से में लाल पीला हो गया था। पहले 2 दिन तक तो मियाँ बीवी में खुफिया खुफिया ही नोकझोंक चलती रही। फिर पिछली रात गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मजबूरन मुझे मुदाखलत करना पड़ी। रात को चूंकि मास्टर जमशेद भी इधर नहीं था इसलिए याकूब खूब खुलकर बोल रहा था। मौके महल को देखते हुए मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। सुल्ताना, मुझे पता चला कि पिछली रात मियाँ बीवी में झगड़ा इतना बढ़ गया था कि गुस्से में आकर याकूब ने फिरदौस को तलाक की धमकी भी दे दी थी। मेरा तीर निशाने पर लगा। वो निगाह चुराते हुए बोली, याकूब इस वक्त बहुत तेज में था मगर मैंने समझा बुझाकर इसका गुस्सा ठंडा कर दिया था। गोया सुल्ताना ने मेरे सवाल की तस्दीक कर दी थी। मैंने मजीद 2-4 सवालात के बाद सुल्ताना को फारिग कर दिया और इसके बाद इसके बेटे को याकूब को बैठक में बुला लिया। इब्तिदाई सवालात के बाद मैंने सुल्ताना के बयान की तस्दीक कर ली। फिर इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या ये बात तुम फरीद बख्श के सामने भी कह सकते हो कि इसने तुम्हें फिरदौस और जमशेद के ताल्लुक के बारे में बताया था? जी हाँ, क्यों नहीं, वो साबत में गर्दन को लाते हुए बोला। एक बार नहीं 100 बार कह सकता हूँ जनाब। तुम आज सुबह जब अपनी माँ को शहर लेकर रवाना हुए थे तो घर में क्या वाकया पेश आया था? कोई वाकया पेश नहीं आया था जनाब, वो बड़ी रसान से बोला। और
पिछली रात क्या जी? जब पिछली रात तुम दोनों बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था तो तुमने फिरदौस को कत्ल की धमकी भी दी थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? मैंने दानिश अल्लाह के बजाय कत्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो मेरे दांव में आ गया और जल्दी में एक अहम बात को तस्लीम कर लिया। जनाब, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। वो वजाहत करते हुए बोला। फरीद की बातों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया था और जब मैंने इस सिलसिले में फिरदौस को कुरेदा तो इसने मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी सवालत के जवाब में इसने चुप कर रोज़ा रख लिया। तो मुझे तैश आ गया और मैंने इसी तैश के आलम में इसे जान से मारने की धमकी दे डाली थी। लेकिन वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला, लेकिन अम्मा ने बीच बचाव करा के मेरी गलतफहमी दूर कर दी थी। अम्मा ने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। उसने कहा कि फिरदौस का किरदार बेदाग है, इसलिए मैं मास्टर जमशेद के हवाले से इसकी ज़ात पर कोई शक ना करूँ। अम्मा ने समझाया और तुम समझ गए। मैंने कदरे तेज लहजे में कहा, क्या इतना ही आसान साबित हुआ था अम्मा का समझाना? जी हाँ, मैं अम्मा की बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, लेकिन बरखुरदार, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, बीवी का मामला बड़ा अजीबो-गरीब होता है। इसके किरदार के हवाले से पैदा हुआ शक या गलतफहमी इतनी आसानी से रफ़ा नहीं होती। इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, याकूब, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। मैं थाने चलूँ? वो हैरतज़दा लहजे में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जनाब, मेरी बीवी जलकर मर गई है। वो एहतजाजी अंदाज में बोला, और आप मुझे को थाने ले जाने की बात कर रहे हैं? ये तो सरासर जुल्म है। एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो याकूब। मैंने इसके एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए सनसनीखेज़ लहजे में कहा। वो हक्का नज़रों से मुझे तकने लगा। कौन सी बाजी? ये बात कि मैंने वजाहत करते हुए कहा कि तुम्हारी बीवी की मौत जलने से वाकई नहीं हुई। तो फिर? मैंने इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा, फिरदौस बीवी को बाकायदा कत्ल किया गया है। इसे मौत के घाट उतारने के बाद आग के सुप्त किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिरदौस के मौत के राज को मुनकशिफ कर देगी बहुत जल्द। तो आप ये समझ लें कि फिरदौस की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? वो हंसा नज़रों से मुझे देखने लगा। मैं ऐसा सोचने में हक बजानिब हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि गुज़िश्ता रात तुमने इसे जान से मारने की धमकी दे चुके हो। वो वक्ती इश्ताल था। वो जल्दी से बोला, मैं आपको पूरा वाक़या बता चुका हूँ और अम्मा ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था। और वो सांस संभाल करने के लिए मौकूफ़ हुआ, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते बोला, और सुबह जब मैं और अम्मा शेर गए तो फिरदौस भली चंगी घर में मौजूद थी। हम इसे जीता जागता घर में छोड़कर गए। जब वापस आए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लिहाजा ये समझना कि फिरदौस को मैंने या अम्मा ने मौत के घाट उतारा होगा बिल्कुल गलत है जनाब। और वैसे भी वो जलकर मरी है। ये भी तो हो सकता है कि इसने खुदकुशी कर ली हो। फिरदौस की मौत को कातिल ने रंग तो ऐसा ही दिया कि खुदकुशी का वाक़या नजर आए। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन इसमें हकीकत की तह तक पहुंच चुका हूँ कि तुम्हारी बीवी को कातिल ने पहले किसी भी तरीके से मौत के घाट उतारा है। उसके बाद आग भड़काकर ये साबित करने की कोशिश की कि इसने खुद को जलाकर जान दे दी है। फिर मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में याकूब को इन तकनीकी अमूर से आगाह किया जो इस बात का बेन सबूत थे कि फिरदौस की मौत खुदकुशी या आतिश का शाखसाना नहीं बल्कि सोची समझी कत्ल की वारदात थी। आखिर में मैंने कहा, याकूब देख लेना, जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चिक कर इसकी तस्दीक करेगी। लेकिन जनाब, वो बेहद उलझे हुए अंदाज में बोला, फिरदौस को कौन कत्ल कर सकता है? यही जानने के लिए तो मैं तुम्हें और फरीद बख्श को अपने साथ थाने ले जा रहा हूँ। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। फिर मैंने अपने इन ख्यालात को अमली जामा पहना दिया जिनका याकूब के सामने इज़हार किया था। इस मौके पर मेरी सुल्ताना ने बहुत वावेला मचाया, यहाँ तक कह दिया कि पुलिस की जानिब से इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन मैंने इसकी किसी भी मज़ामत और एहतजाज की कतन कोई परवाह न की और फरीद बख्श के साथ भी याकूब को थाने पहुंचा दिया। इस तमाम तर कार्रवाई से निपटते हुए दोपहर हो गई थी। मैंने इत्मीनान से इन दोपहर का खाना खाया और जोर की नमाज अदा करने के बाद दोबारा अपने कमरे में आ बैठा। फिर मैंने एसआई शकूर को अपने कमरे में बुलाया। शकूर की उम्र 35 और 40 के दरमियान थी। वो सांवली रंगत का मालिक, दराज का मर्द और सख्तगीर पुलिस वाला था। इसने कमरे में आकर मुझे सलूट किया और मेरे इशारे पर एक कुर्सी संभाल ली। मैंने कंगार कर गला साफ किया और नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में मैंने इसे ताज़ा तरीन सूरत से आगाह किया और आखिर में कहा, शकूर, तुम अभी मौजे रसूलपुर रवाना हो जाओ। चाहो तो अपने साथ एक आध कांस्टेबल भी ले जाओ। तुम्हें आज ही मास्टर जमशेद को लेकर वापस आना है। रात हो जाए या इससे भी ज़्यादा देर हो जाए, कल का सूरज तुल होने से पहले मास्टर मुझे थाने में चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए मलिक साहब, आपके हुक्म की तामील होगी। और हाँ, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मास्टर को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हालात पेश हो चुके हैं। ठीक है जनाब। शकूर ने साबत में गर्दन हिलाई और कहा, अगर वो पूछे कि इसे यूं में क्यों बुलाया जा रहा है तो क्या जवाब दूँ? कोई भी बहाना कर देना। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, तुम इसे कह सकते हो कि स्कूल में आग लग गई, वहाँ रिकॉर्ड की बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी, इनमें से बेशतर जलकर खाक हो गई हैं, इसलिए इसे फ़ौरन बुलाया जा रहा है। यहाँ के तमाम मास्टर तो मौजूद हैं, बस इसकी ज़रूरत है ताकि स्कूल के अहम कागजात को संभाला जा सके। हाँ, ये निहायत ही माकूल बात है। एएसआई ने कायदे अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने इसे मजीद चंद हिदायत दी और नए ख्वाहिशात के साय में रसूलपुर की जानिब रवाना कर दिया। शकूर के जाने के बाद मैंने फरीद बख्श को अपने पास बुला लिया और इसे लेकर